Hello friends, welcome to TechCube Gate classes, the platform where you can prepare for your GATE examination. You can register on our website to access the test series. In this session, we will start new course, Operation Research. My name is Krishan Kumar Gupta. I have done my master's from IIT Delhi in Design Engineering. My latest GATE rank is 429. I have been teaching for competition exams since 2016. I have also worked in industries. This is lecture number 1. In this session, we will start linear programming problem. Okay. The course for this subject is linear programming problem. In this, we will study graphical method. Two methods we will study in this chapter: graphical method and simplex method. Okay. Then transportation problem, assignment problem, PERT CPM, and queuing theory. Okay. This is the syllabus for this course for your GATE examination. एक गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका सिलेबस है ऑपरेशन रिसर्च का. So let's start with linear programming problem. Linear programming problem होता क्या है? In the industry we have to maximize our profit with the limited resources. हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, उससे हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, या फिर अदर वर्ड में अगर हम कहें तो हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है विद द लिमिटेड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड ही हैं, जो है उन्हीं के रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट्स है, मतलब वो हमारे, ठीक है. और हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है? इधर टू मिनिमाइज द कॉस्ट और मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. ठीक है. तो मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो इसको दो पार्ट्स में होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ओके. एंड नेक्स्ट इज कंस्ट्रेंट्स. For example, objective function will be maximize z is equal to say a1x plus a2y. Okay, we have two variables x and y, and we have to maximize this z. Subjected to constraints b11 x plus b12y is less than equal to say c1. Okay. Next is b21x plus b22y is less than equal to c2, and x and y is more than equal to 0. कुछ इस तरह की ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गई हमारी एलपीपी की. ओके. इफ इट इज a maximized function means if we have to maximize our profit. और अगर हमें मिनिमाइज करना है कॉस्ट है, अगर हमारा कॉस्ट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो उसको हम मिनिमाइज करेंगे. इन दैट केस दिस लेस देन साइन विल बी रिवर्स टू मोर देन इक्वल टू साइन. ओके, लेट्स चेंज इट ऑन another page. If it is a minimized objective function, say minimize z is equal to a1x plus a2y, and here it is b11x plus b12y, then it will be more than equals to c1. b21x plus b22y is more than equals to c2. X and y is more than equals to 0. This is a LPP problem for minimization. Means here we have to maximize our profit with this limitation. जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, it is less than equals to c1 and less than equals to c2. Means we have minimum resources and we have to maximize profit, right? In this case we have to minimize the cost, but we have to
we have some maximum problem with this resources, right? एग्जाम्पल लेंगे तो ज्यादा बेटर क्लियर होगा। सबसे पहले आपको ये फॉर्मुलेशन होता है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड फॉर्मुलेशन, means converting the problem into mathematical form is called formulation of LPP. What is formulation of LPP? Converting the problem into mathematical form, this is called formulation of LPP. Clear? एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेटर समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 kg of raw material and 4 hours of labor per week. Product B requires 3 kg of raw material and 3 hours of labor per week. दो प्रोडक्ट हमें गिवन है ए एंड बी। ए के लिए रॉ मटेरियल 2 kg रिक्वायरमेंट है और बी के लिए रॉ मटेरियल 3 kg रिक्वायरमेंट है। सेम रॉ मटेरियल जो दोनों में हमारा यूज होगा, राइट। और जो टोटल रॉ मटेरियल है वो हमारे पास 60 kg है, इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते आप, 60 kg ही आपके पास रॉ मटेरियल है। सिमिलरली लेबर, प्रोडक्ट ए के लिए आपको 4 आवर्स लेबर रिक्वायरमेंट है पर वीक, मतलब 4 आवर्स की लेबर चाहिए आपके पास को, और प्रोडक्ट बी के लिए 3 आवर्स ऑफ लेबर पर वीक रिक्वायरमेंट है। और मैक्सिमम लेबर हमारे पास है 96 आवर्स की पर वीक में, ये हमारे पास अवेलेबिलिटी है, राइट। अब हमें प्रॉफिट गिवन है, ए अगर आप बनाते हो एक यूनिट ए तो उस पर प्रॉफिट 40 रुपीज का होता है और बी पे एक यूनिट पे 35 रुपीज का प्रॉफिट होता है। अब आपको बताना है कितनी यूनिट ए की बनाए कितनी यूनिट बी की बनाए कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, लेकिन लिमिटेशन क्या है, जो रॉ मटेरियल 60 kg है और लेबर आपके पास 96 आवर्स की है। अब इसको पहले आपको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, मीन फार्मूलेशन ऑफ एलपीपी। फर्स्ट स्टेप इज फार्मूलेशन ऑफ एलपीपी। तो आप क्या करोगे, ऊपर लिख दीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट ए, इधर प्रोडक्ट बी, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका प्रोडक्ट, राइट। अब यहाँ पे लिखिए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल ए के लिए कितना रिक्वायरमेंट है 2 kg और बी के लिए रिक्वायरमेंट है 3 kg। यहाँ लिख दीजिए राइट हैंड साइड में अवेलेबिलिटी, कितनी अवेलेबिलिटी है आपके पास, तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी 60 kg, ठीक है। लेबर, लेबर ए के लिए 4 आवर्स ऑफ लेबर रिक्वायरमेंट है, बी के लिए 3 आवर्स ऑफ लेबर रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम लेबर हमारे पास कितनी है 96 आवर्स, राइट। अब कंसीडर कीजिए आपने एक्स अमाउंट ऑफ एक्स यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए बनाए आपने और वाई यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी बनाए हैं आपने, तो आपका कंडीशन क्या हो जाएगी, कंस्ट्रेंट क्या है आपके पास। अब अगर आपने एक्स यूनिट ऑफ ए बनाया तो रॉ मटेरियल कितना रिक्वायरमेंट होगा, ए के लिए 2x और बी के लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा 3y, राइट। और यहाँ पे लिमिटेशन क्या है, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 60, क्योंकि 60 से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड कंस्ट्रेंट क्या है आपके पास, सेकंड है अगर ए आपने एक्स यूनिट बनाया तो लेबर कितनी रिक्वायरमेंट होगी इसमें 4x और बी के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी 3y पर वीक, और मैक्सिमम लेबर कितनी अवेलेबल है आपके पास 96, 96 से ज्यादा नहीं हो सकती, 96 से कम हो सकती है, 96 के बराबर यूज कर सकते हो आप लेबर को, बट 96 से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया आपके पास कंस्ट्रेंट। और एक्स और वाई ये नेगेटिव नहीं होता नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आपका एक्स और वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हो गई कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा इसका, प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ए इज 40 एंड प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ बी इज 35 रुपीज, राइट। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा आपका, मैक्सिमाइज दैट 40 रुपीज ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 35 रुपीज ऑफ प्रोडक्ट बी। नंबर ऑफ यूनिट अगर एक्स की ए की यूनिट एक्स है तो 40x हो जाएगा प्रॉफिट, और बी की यूनिट वाई है तो 35y हो जाएगा। ये दोनों मिला के आपको प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या है आपके पास, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स ये है आपके पास, क्या क्या है 2x प्लस 3y
2x plus 3y should be less than equal to 60 and 4x plus 3y should be less than equal to 96 and xy should be greater than equal to 0. अब आपकी प्रॉब्लम जो थी आपकी वो आपने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर ली है, अब इसको सॉल्व करना है। तो अब हम स्टार्ट करने जाते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, उससे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको। ग्राफिकल मेथड में आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास इक्वेशन है, इनको इक्वेशन नंबर डाल लेंगे हम। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका इनइक्वलिटी का साइन है उसको आप इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। ये आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 60। ओके, आपने इनइक्वलिटी साइन को इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लिया है, राइट। यहां से आप इक्वेशन निकालेंगे, इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए एलपीवी में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, तो आपका ये लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन होगी मतलब ऑर्डर 1 रहेगा आपका, ऑर्डर ऑफ इक्वेशन शुड बी 1। दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लीजिए यहाँ से आप। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x एक टेबल बना लेंगे, x y, व्हेन x इज 0 व्हाट विल बी y, y विल बी 20 एंड व्हेन x y इज 0 x इज 30। इक्वेशन ऑफ लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ पे, राइट। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन लिख लीजिए 4x प्लस 3y, इसको भी इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लीजिए आप 96। अगेन x y, x 0 करेंगे आप तो y कितना हो जाएगा 32, और y 0 कर लीजिए आप तो x कितना हो जाएगा आपके पास 24। अब इन दोनों इक्वेशन लाइन को आप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इस पे हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया आपका, ये एक्स एक्सिस हो गया। ओके, फर्स्ट इक्वेशन देखें। ओके, मैं इसको 5 के फैक्टर में ले लेता हूँ एक्स को, या 4 के फैक्टर में ले लेता हूँ, इट विल बी मोर इजी। 4 8 12 16 20 24 28 32 34 36। क्लियर, ये हो गया एक्स हमारा, और वाई को भी सेम ले लेते हैं, सेम स्केल ले लेते हैं। 4 8 16 20 24 28 32 36 40। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया ग्राफ। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन है, पॉइंट्स पहले लिख लीजिए, पॉइंट के 0 20 एंड 30 0।
020, 020 will be this point and 30 will be approximate this point, right? यहाँ पे इक्वेशन ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये लाइन ड्रॉ हो गई, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन लाइन, ठीक है। यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर लिख देंगे, इक्वेशन लिख देंगे लाइन की। इक्वेशन क्या है यहाँ पे, 2x plus 3y is less than equal to 60। ओके, अब हम सेकेंड इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 0, 32, 24, 0, 0, 32, ये पॉइंट हो गया 0, 32, और सेकेंड क्या है 24, 0, 24, 0 आपका ये पॉइंट हो गया। तो इसको भी ज्वाइन कर दीजिए लाइन को। राइट, इस इक्वेशन को लिख दीजिए कि कौन सी इक्वेशन है ये, इट इज 4x plus 3y should be less than equal to 96। ओके, अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन देखिए, आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो है आपकी यहाँ पे 2x, ओरिजिनल इक्वेशन इज 2x plus 3y should be less than equal to 60। ओके, आप यहाँ पे क्या करेंगे, x और y की जगह 0 पुट करके चेक करिए एट 0, 0, ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, ट्रू और फॉल्स, इट इज ट्रू, 0 इज लेस देन 60। अगर आपका ट्रू है मतलब ये ए पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है ये इक्वेशन में, मतलब आप क्या करेंगे यहाँ पे 2x plus 3y, यहाँ पे आप ए पॉइंट को, ए पॉइंट मतलब 0 पॉइंट पे आप शो कर दो, 0 पॉइंट इसके अंदर लाई करेगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये एरिया 0 की तरफ आप शो कर दीजिए, ये पूरा एरिया इसके अंदर आ जाएगा। लेस देन, जितना भी इस लाइन से नीचे की तरफ एरिया है वो सारा एरिया आप कवर कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली इस इक्वेशन में देखिए एक्स और वाई के 0, 0 रखिए, 0 इज लेस देन 96 विच इज ट्रू, लिख ही लेते हैं यहाँ पे एट 0, 0। ओके, तो 0 इज लेस देन 96 विच इज ट्रू। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 4x plus 3y should be less than equal to 96। ट्रू है तो मतलब ये इसको फॉलो करेगा। तो ये भी लेस देन हो जाएगा। इसके नीचे का एरिया जितना भी होगा मतलब वो इसको सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को, इनइक्वालिटी इक्वेशन जो है हमारी, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इस इक्वेशन से वो सब सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। ओके, इसके अलावा अभी हमारे पास और भी था, x और y शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। x देखो, x क्या था, नंबर ऑफ यूनिट आपने कंसीडर किया था, आपने यहाँ पे x इज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ a एंड y इज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ b। नंबर ऑफ यूनिट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x एंड y शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। या तो आप ये पॉसिबल है कि आप बिल्कुल ना बनाए, तो 0 तो पॉसिबल है बट नेगेटिव पॉसिबल नहीं है नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो x और y शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। एक्स और वाई मोर देन इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो आप जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं अगर आप, तो जो आपका कॉमन एरिया होगा, जो एरिया होगा इसका, ये आपका ये हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में से, और इन जो कंस्ट्रेंट है इनका भी कॉमन एरिया लेना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका
कॉमन एरिया, जो मैं ब्लैक लाइन से शो कर रहा हूँ, दिस इज कॉमन एरिया। ठीक है, मतलब ये जितने भी इस एरिया में जितने भी पॉइंट्स होंगे ये आपकी सारे कंडीशन को फुलफिल करेंगे, जितनी भी आपकी कंडीशन कंस्ट्रेंट्स हैं इन सबको, इन सारे कंस्ट्रेंट्स को फुलफिल करेंगे इस एरिया के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे। ठीक है, इनको एरिया को, इन पॉइंट्स को, जो आउटर मोस्ट पॉइंट है इनको नंबरिंग कर देंगे हम, नंबरिंग कर दीजिए। ये हो गया ओ पॉइंट, ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, और ये हो गया आपका सी पॉइंट। ठीक है, ओ ए बी सी। ओ के कोऑर्डिनेट क्या है आपके, ओ के कोऑर्डिनेट है आपके 0 0, ए के कोऑर्डिनेट है आपके 24 0, बी के, बी के हम निकाल लेंगे अभी, बी के पता नहीं हमें, और सी के है आपके 0 20। राइट, ओ ए बी और सी, ये चारों पॉइंट है। अब बी के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे आप, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप निकाल लोगे बी के पॉइंट्स। कैसे निकालेंगे, ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं, राइट। 2x प्लस 3y इक्वल टू 60 और 4x प्लस 3y इक्वल टू 96। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप क्या करोगे, बी पॉइंट निकालो। दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिए, मतलब दोनों को आप कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन, क्या बन जाएगी ये 4x प्लस 6y इक्वल टू 120। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया आपने 2 से, इसको एज इट इज रहने दीजिए, 4x प्लस 3y इक्वल टू 96। आपके x के कोएफिशिएंट सेम हो गए, आप कैंसिल कर सकते हैं इक्वेशन को, x को एलिमिनेट कर दिया, नीचे बचा 3y इक्वल टू y आ गया आपके पास 8। इस पॉइंट पे 8/8 हो गया। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए आप, मान लीजिए इसमें रख दिया हम 2x प्लस 3 इंटू 8 इक्वल टू 60, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस 24 इक्वल टू 60, 2x इक्वल टू 60 माइनस 24 कितना होगा 36, तो x आपके पास आ गया 18। x इज 18, y इज 8, तो ये जो b पॉइंट था आपके पास, ये आ गया आपके पास 18 8। क्लियर, b पॉइंट मिल गया आपके पास 18 8। अब इन चारों पॉइंट्स, जो भी आपके आउटर मोस्ट पॉइंट्स हैं, इन सब पे आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए, जो प्रॉफिट है उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, इसको मैं एक साइड में लिख लेता हूँ। ओके, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है यहाँ पे 40x प्लस 35, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो आप यहाँ पे निकाल लीजिए, z की वैल्यू निकाल लीजिए, z इज 40x प्लस 35y। तो एट ओ पे निकालिए पहले, सबसे पहले ओ क्या है 0 0, तो z क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। एट ए पे निकालिए, ए है 24 0, तो z क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 इंटू 24 प्लस 35 इंटू में 0, इसको सॉल्व कीजिए 960 आ गया। एट बी पे चेक कीजिए, z इक्वल टू 40 इंटू में 18 प्लस 35 इंटू में 8, सॉल्व कीजिए 720 प्लस 280,
ये हो गया 1000 और सी पे चेक कीजिए, दैट इज इक्वल टू 40 इंटू में 0 प्लस 35 इंटू में 20, ये हो गया आपके पास 700। आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था? मैक्सिमाइज जेड, मैक्सिमम करना है आपको। तो मैक्सिमम कहाँ पे है आपकी, किस पॉइंट पे? मैक्सिमम वैल्यू इज 1000 एट पॉइंट बी। तो ये आपका आंसर हो गया। आप कितनी यूनिट बनाओगे? ए की आप 18 यूनिट बनाओगे, सॉरी, ए की आप 18 यूनिट बनाओगे और बी की आप 8 यूनिट बनाओगे। दिस इज योर आंसर, एक्स एंड वाई। तो आप नीचे लिख दोगे नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर प्रोडक्ट ए is 18 and number of units for product B is 8. I hope this is clear to you and the maximum profit is 1000 rupees. आपको ये भी लिखना होगा, maximum profit rupees 1000। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? दिस इज क्लियर टू यू। किस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कुछ टर्म समझ लेते हैं इसमें। फिजिबल सॉल्यूशन। अब फिजिबल सॉल्यूशन क्या है? ये देखिए, जो भी आपने यहाँ पे ये जो एरिया आया था आपका ओ ए बी सी, इसके अंदर आप कोई सा भी पॉइंट सॉल्व करोगे तो आपकी वो हर कंस्ट्रेंट जो है आपकी वो सब सेटिस्फाई करेगा इस रीजन के अंदर। मतलब क्या है? ये आपकी फिजिबल सॉल्यूशन है। फिजिबल मतलब पॉसिबल सॉल्यूशन, ओके। फिजिबल सॉल्यूशन मतलब पॉसिबल सॉल्यूशन, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिसीजन वेरिएबल दैट सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट्स ऑफ एलपी प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली सेट टू कंप्यूट द फिजिबल सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। मतलब जो भी आपकी कंस्ट्रेंट्स को जो इक्वेशन जो सॉल्यूशन जो आपका सेटिस्फाई करेगा उसको हम बोलते हैं फिजिबल सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं आपके पास ऐसे, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऐसे हो सकते हैं जो आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन है। जितने भी वो ओ ए बी सी डी के अंदर रीजन में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब आपके फिजिबल सॉल्यूशन है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज बेसिक सॉल्यूशन। अब कंसीडर कीजिए आपके पास n वेरिएबल हैं। जैसे अभी हमारे पास क्या था, x और y दो वेरिएबल थे और दो ही कंस्ट्रेंट थे हमारे पास। कंसीडर आपके पास n वेरिएबल हैं जो कि और m इक्वेशन है सच दैट n इज मोर देन m, n आपका m से ज्यादा है। उस केस में क्या करोगे आप? मान लीजिए हम बात कर रहे हैं 5 वेरिएबल्स हैं आपके पास, ठीक है, और आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, 3 कंस्ट्रेंट्स हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे? 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, मतलब 2 वेरिएबल, आप कोई से भी 2 वेरिएबल्स को आप 0 पुट कर देंगे। पहले आप कंसीडर कर लेंगे, आप कंसीडर 2 वेरिएबल्स कोई से भी आपके 0 हैं। अब जैसे 0 पुट हो जाएंगे तो अब क्या बचेगा? 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, नाउ यू कैन सॉल्व। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, नाउ यू कैन सॉल्व। जो आपके 3 वेरिएबल्स होंगे वो आपके कहलाएंगे बेसिक सॉल्यूशन। 3 वेरिएबल के जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्यूशन। और 3 वेरिएबल्स को आप जो क्या बोलोगे? बेसिक वेरिएबल। अब आपके 3 वेरिएबल्स जो होंगे उनको आप बोलोगे बेसिक वेरिएबल, और इसको बोलोगे आप नॉन बेसिक वेरिएबल, ठीक है। इसको बोलोगे आप नॉन बेसिक वेरिएबल। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या है? जो बेसिक वेरिएबल की वजह से जो सॉल्यूशन आपका फिजिबल सॉल्यूशन आया उसमें आपका वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है। मतलब क्या हुआ? आपकी कोई भी नॉन नेगेटिव वैल्यूज नहीं होंगी, सॉरी, नॉन नेगेटिव वैल्यूज होंगी, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी आपकी, ठीक है। वो होगा आपका बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। वेरिएबल की कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। अब नेगेटिव नहीं हो सकती तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो पॉजिटिव हो या फिर 0 हो। अगर आपका जो वेरिएबल की वैल्यू, बेसिक वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 आती है, बेसिक वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम, नॉन बेसिक वेरिएबल तो 0 होगा ही होगा। अगर आपका बेसिक वेरिएबल की वैल्यू 0 आ जाती है उसमें हम कहते हैं हमारा सॉल्यूशन डी जनरेट हो गया, डी जनरेट, ओके। और अगर आपकी बेसिक वेरिएबल की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो उस केस में हम बोलेंगे इट इज नॉन डी जनरेट बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ पे हमने समझे। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन
बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जो बेसिक वेरिएबल की वजह से जो सॉल्यूशन आएगा जिसमें नॉन नेगेटिव वैल्यूज होंगी उसको हम बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में जो बेसिक वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू अगर एक भी वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाती है अगर उसमें, तो हमारा सॉल्यूशन डीजनरेट हो जाएगा। और अगर हमारा सारी वैल्यू बेसिक वेरिएबल की पॉजिटिव आती है तो वो होगा नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। लास्ट इज अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अनबाउंडेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपका जो एरिया आया वो बाउंडेड ही नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम एक केस ले लेते हैं, आपने कोई ग्राफ तैयार किया, ठीक है, आपका फर्स्ट कंस्ट्रेंट की इक्वेशन ये आई आपकी, ओके, फर्स्ट कंस्ट्रेंट की इक्वेशन ये आई है आपकी। और कंसीडर कीजिए सेकंड कंस्ट्रेंट की इक्वेशन आपकी ये आई है, राइट। ये आपका एरिया है इसका लेस देन वाला, और इसका एरिया ये वाला है, मान लीजिए ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या है आपका अनबाउंडेड एरिया, आपका एरिया अनबाउंडेड है, ओके, so this is unbounded problem. ओके, गेट में क्वेश्चन आया हुआ है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 15x प्लस 20y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स 12x प्लस 4y शुड बी मोर देन इक्वल टू 36 एंड 12x माइनस 6y शुड बी लेस देन 24, लेस देन इक्वल टू 24। अब आपको एक प्रॉब्लम बतानी है कैसी है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। 12x प्लस 4y, सबसे पहले इक्वेशन देख लेते हैं। 12x प्लस 4y शुड बी मोर देन इक्वल टू 36, मोर देन इक्वल टू 36। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको पहले इक्वल टू में कन्वर्ट करोगे। 12x प्लस 4y शुड बी इक्वल टू 36। फिर x और y इनकी वैल्यूज निकालेंगे आप। पहले x को 0 पुट कीजिए तो y आ गया आपका 9, फिर y को 0 पुट कीजिए तो आपका x आ गया 3, ठीक है। सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, 12x माइनस 6y शुड बी लेस देन इक्वल टू 24। 12x माइनस 6y, 12x माइनस 6y should be less than equal to 24। अगेन इसको इक्वल टू करेंगे हम, पहले इक्वल टू 24, देन x और y की वैल्यूज रखेंगे हम इक्वेशन निकालने के लिए। लाइन x0 देन y विल बी -4, y0 देन x विल बी 2। अब ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, 0930, इसको हम 1 2 3 ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 3 4 5 7, ओके। चलिए 0930, तो 09 आपका ये पॉइंट हो गया और 30, 09 आपका ये वाला पॉइंट हो गया और 30 ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये इक्वेशन को आप ड्रॉ कर दीजिए, लाइन को 0930, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, सेकेंड इक्वेशन है 0 -4 एंड 2 0, 0 -4, 0 -4 नीचे आएगा आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 -4 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और 2 0
आपका ये होगा। ये इक्वेशन भी हम ड्रॉ कर देंगे लाइन। ओके, 0 -4 2 0, ये भी हो गया आपका। अब क्या है देखते हैं। 12x + 4y शुड बी मोर देन इक्वल टू 36। मतलब यहाँ पे अगर आप x और y की 0 0 पुट करेंगे, अगर आप चेक करेंगे एट 0 0 एट 0 0, तो ये हो जाएगा 0 इज मोर देन इक्वल टू 36। इज इट फॉल्स? फॉल्स है तो मतलब ये 0 से अवे होगा, 0 से अवे मतलब अपोजिट साइड। ये लाइन बनेगी आपकी, ये एरिया होगा अवे फ्रॉम 0। ओके, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या बनी आपकी? यहाँ पे 0 0 चेक कीजिए, इसको चेक कीजिए 0 0 पे एट 0 0, 0 इज लेस देन इक्वल 24 विच इज ट्रू। 0 इज लेस देन 24 मतलब ये 0 की तरफ बनेगी, टुवार्ड 0। इसका एरिया जो होगा वो टुवार्ड 0 होगा, इसका जो एरिया होगा वो टुवार्ड 0 होगा। टुवार्ड 0 मतलब इस तरफ। ओके, और एक्स एंड वाई शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। एक्स और वाई 0 से ज्यादा होंगे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की मतलब बात कर रहे हैं हम इस एरिया की। अब जो कॉमन एरिया क्या होगा, वो ये हो गया कॉमन एरिया आपका, ये वाला, ये आपका कॉमन एरिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। बट दिस इज अनबाउंडेड। अब देखिए, कॉमन एरिया तो आया बट ये अनबाउंडेड एरिया है आपका, बाउंडेड नहीं है। दिस इज कॉल्ड अनबाउंडेड, मतलब क्लोज नहीं हुआ ये, ठीक है। दिस इज नॉट क्लोज, अनबाउंडेड। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? अनबाउंडेड सॉल्यूशन। कॉमन एरिया है बट अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सेम प्रॉब्लम ये है, आपको ये भी सॉल्व करनी है, ठीक है। इसका आंसर भी आपका अनबाउंडेड सॉल्यूशन ही आएगा, इसको चेक करिएगा सॉल्व करके। ओके, इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका इसका आंसर आएगा एग्जैक्टली वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस। अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम आती है, आप लोग टेलीग्राम चैनल है उसमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं वहां पे बता दूंगा अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक जो होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको उस पर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, मैकेनिकल का टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है सब्जेक्ट रिलेटेड तो आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ यूजफुल आपको डाटा मिल रहा है, आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए इसको। ओके, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस चैनल, so you can share it with your friends or relatives who are doing BTech or preparing for some competition exams. Okay, thank you.